सी द डेफिनेशन ऑफ द टेंशन फोर्स. ठीक है, फिजिक्स में टेंशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ पुलिंग फोर्स बिकॉज वी हैव सीन दैट ईच एंड एवरी सेगमेंट इज पुल्ड. ठीक है, इन आइदर डायरेक्शन. तो इट इज अ पुलिंग फोर्स ट्रांसमिटेड एक्सियली दैट मीन्स एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट. We have considered the string, and if this is a string, if this pen is a string, then its axis is like this. So this force is a pulling force which is transmitted axially by the means of a string, a cable, a chain, or a similar one-dimensional continuous object. This is the string, cable, or chain. These are what one-dimensional object. So tension is a pulling force which is transmitted axially through this one-dimensional object, or it could be a three-dimensional object like a rod which is having a radius. So it is a what three-dimensional object. ठीक है, because it is having the radius, it is having sides, obviously the three-dimensional. ठीक है, truss member or a similar three-dimensional object we can note it. ठीक है, tension might also be described as an action-reaction pair. Obviously we have seen that in a string, if we consider any segment, then there is an equal and opposite force acting on it, right? So it could be considered like that if this segment means, consider this two segment. One second. Suppose this is a string. ठीक है, एंड दिस इज द टू सेगमेंट विच आई हैव सेपरेटेड फ्रॉम अ लाइन. ठीक है, इफ दिस सेगमेंट इज पुलिंग दिस सेगमेंट दिस वर्ड. ठीक है, इफ दिस सेगमेंट आई विल नंबर दिस एज 1 and 2. ठीक है, तो इफ द सेगमेंट 2 इज पुलिंग द सेगमेंट 1 टूवर्ड्स राइट, देन सेगमेंट 1 विल पुल द सेगमेंट 2 टूवर्ड्स लेफ्ट. सो टेंशन फोर्स कैन बी अंडरस्टूड एज एन एक्शन रिएक्शन पेयर. ठीक है, बिकॉज 1 is applying force on 2 towards left and 2 is applying force on 1 towards right. So it is an action reaction force. So this is the definition, that is a pulling force transmitted axially by the means of a string, a cable, or any one-dimensional or a rod like a three-dimensional object. And it also acts as an action reaction pair of forces acting at end of the each elements. Tension could be the opposite of compression. Obviously we compress object like this, right? And tension we are pulling it like this. So this is the content of the tension force. If the system is in equilibrium, then we can, if we hang a ball through a string, and if the system is in equilibrium, that is not moving, that is acceleration is 0, or it is moving with a constant velocity, then we can balance the tension force in the string with the mass of the body. ठीक है, ये एक important concept होता है. And then by applying the second law of Newton, that is net force is equals to mass into acceleration, we can find the desired answer or whatever asked in the question. Okay, इसमें important क्या होता है, बहुत सारे पुली के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, हाँ, स्ट्रिंग के पोर्शन में कुछ और इम्पोर्टेंट बात करनी है. ठीक है, स्ट्रिंग में एक तो बात इतना समझ में आ गया था कि इस स्ट्रिंग में थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम टेंशन होता है. ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रिंग में कुछ कर्वेचर है, ठीक है, लाइक अगर वो आई विल शो यू, जस्ट वेट. जैसे कि पुली के ऊपर हमने एक स्ट्रिंग डाल के रखा है. ठीक है, तो उसमें क्या है, कर्वेचर है. तो वहाँ पे टेंशन फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा क्योंकि वो सेम मतलब सेम स्ट्रिंग है. बट उसमें क्योंकि ये फोर्स है तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें डायरेक्शन डिफरेंट होगा. तो फिर नेट फोर्स है वो डिफरेंट आ जाएगा. जैसे कि ये वाला केस देखो. ठीक है, यहाँ पे ये पुली है. हम इस पुली को अज्यूम कर रहे हैं कि ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस है. ठीक है, सो दैट ये जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर वो फ्रीली स्लाइड कर सकता है इसके ऊपर. ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है. दिस इज द सेम स्ट्रिंग कनेक्टिंग द टू मास ऑफ द इक्वल वेट m और m. ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक सेगमेंट जो पुली के जस्ट ऊपर जो ये स्ट्रिंग का सेगमेंट है, ठीक है, अगर इस स्ट्रिंग के सेगमेंट पे अगर हम फोर्स को देखें तो ये वाला जो स्ट्रिंग है वो इधर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये वाला स्ट्रिंग जो है वो इधर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, जो भी एक टी फोर्स या टी फोर्स होगा दैट द मैग्नीट्यूड विल बी सेम. ठीक है, बट उनका डायरेक्शन अलग है. ठीक है, दे आर एट द 90 डिग्री टू ईच अदर. और अगर ये पुली फिक्स नहीं होता, ठीक है, लेट्स सपोज अगर ये पुली फिक्स नहीं होता तो ये स्ट्रिंग जो है वो इधर मूव करने की कोशिश करता. ठीक है, जैसे कि
क्या है, एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में, वन फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन एंड वन फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, एंड दिस इज हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। तो इसका नेट फोर्स कुछ इधर की तरफ आ जाएगा, चूंकि ये 90 डिग्री पे है तो F√2 जो है वो नेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पुली नहीं होता, ठीक है, लेट्स सपोज जो ये हमारा सिचुएशन है कि ये पुली है और यहाँ पे ये स्ट्रिंग है इस तरीके से, और यहाँ अगर ये पुली फिक्स्ड नहीं होता तो फिर ये पुली के साथ ये स्ट्रिंग जो है वो इधर की तरफ मूव कर जाता है, बिकॉज नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन का फोर्स तो सेम होगा, बट नेट अगर स्ट्रिंग में कर्वेचर है, यानी कि यहाँ पे कहीं बेंड है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे जो है वो आपका नेट फोर्स हम डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हुए देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको अगर एक क्वेश्चन की तरह डील करें, ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि ये सिस्टम नीचे की तरफ मूव करेगा, है ना, क्योंकि इसमें मास mg है। अच्छा, जो क्वेश्चन की तरह डील करते हैं, तो लेट्स सी देयर आर टू बॉडी इन इट, ठीक है, इसको बॉडी ए और बॉडी बी कंसिडर करते हैं, ठीक है। बॉडी ए का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, जस्ट लुक हियर, वेट, अगर बॉडी ए का एक हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इस तरीके से, तो इस पे m फोर्स जो है, मतलब अगर इसका मास m है तो इस पे mg फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन फोर्स क्या है, ऊपर की तरफ अपवर्ड कर रहा है, और एक फोर्स जो इधर रखा हुआ है इस पे सिर्फ टेंशन फोर्स इधर की तरफ कर रहा है और mg नीचे लग रहा है। पर चूंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे रखा हुआ है, तो फिर नॉर्मल फोर्स जो है इस mg को क्या है, बैलेंस कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर न्यूटन का, सो इफ़ वी आर कंसिडरिंग ये वन फर्स्ट बॉडी एंड ये सेकेंड बॉडी है, तो इनका जो फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इंटायर सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, mg है। तो हमने यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट किया था कि जो mg है दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल मास दैट इज 2m इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन है वो क्या आएगा, g/2, ठीक है। सो g/2 इज एक्सेलरेशन, सो वी हैव डिड इट बाई सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है F नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, उससे किया, ठीक है। g/2 आ गया। तो अब अगर टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है इस वाले सिस्टम के लिए, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो g/2 एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा mg माइनस टी इज इक्वल्स टू m इंटू g/2। ओके, तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा mg माइनस mg/2 that is equals to t, and so t will be equals to mg/2, ठीक है। तो t यहाँ पे क्या होगा, mg/2 के इक्वल होगा। तो इस डायग्राम में जो टेंशन है, सो टेंशन इन दिस डायग्राम इज व्हाट mg/2, और जो एक्सेलरेशन है वो g/2 एक्सेलरेशन से इन दोनों बॉडी क्या है मूव कर रहा है, ठीक है। अब तो ये एक सिंपल सा डायग्राम था जिसके थ्रू आप पुली के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पुली को मासलेस और फ्रिक्शनलेस कंसिडर किया है, इसलिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। अगर ये फ्रिक्शनलेस नहीं हो पाता तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन का वैल्यू भी अप्लाई करना पड़ता, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता। हाँ, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, जस्ट वेट। See this is a simple example of the tension force in which there are two person जो कि ये string है उसको stretch कर रहे हैं, ठीक है। तो they are applying the force on the end,
सो दैट द स्ट्रिंग जो है वो बिल्कुल टाइट या फिर टॉट जो है वो बोल सकते हैं है। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट की अगर बात करें, ठीक है, अगर यहाँ पे एक सेगमेंट हम लें तो उस सेगमेंट पे एक फोर्स जो होगा वो इधर की तरफ होगा और एक फोर्स क्या होगा, इधर की तरफ होगा। ठीक है, टेंशन फोर्स बेसिकली अगर एक स्ट्रिंग सिंपली ऐसे अगर एक स्लैक वे में रखा होता जो टाइट नहीं होता तो उसमें हम टेंशन फोर्स 0 बोलते हैं। बट यहाँ पे 2 पर्सन इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं तो इस पूरे स्ट्रिंग में कहीं ना कहीं एक टेंशन फोर्स है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर बात करें तो, लेकिन अब आप कहोगे कि अगर फोर्स अप्लाई है तो वाई दिस स्ट्रिंग इज नॉट मूविंग। ये इसलिए क्योंकि अगर ये वाला पॉइंट हम कंसिडर करें, ठीक है, ये पॉइंट अगर कंसिडर करें तो उस पर एक फोर्स इधर की तरफ है और एक फोर्स इधर की तरफ है। मतलब कोई भी पर्टिकुलर सेगमेंट पे एक फोर्स राइट की तरफ है और एक फोर्स लेफ्ट की तरफ है जिसका वैल्यू सेम है। अगर लेट सपोज टी और टी अगर बोल रहे हैं तो वो वैल्यू सेम है, इसलिए वो आपका कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए कोई सा ही पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट पे है, क्योंकि टेंशन फोर्स जो है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो ये थ्रू आउट द स्ट्रिंग पे एप्लीकेबल है। जो भी सेगमेंट आप ले उन सब पे क्या है, ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये टेंशन का एक सिंपल सा फिगर है। इस गेम को आप जानते हैं, ये टग ऑफ वॉर ये गेम होता है। ठीक है, टग ऑफ वॉर, इसमें इसका एक टीम को दिखाया गया है जो कि इस स्ट्रिंग को अपनी तरफ पुल कर रही है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये जो इस सेगमेंट पे टेंशन होगा वो इधर की तरफ भी होगा और इधर की तरफ भी होगा, है ना। तो हम जानते हैं कि तब तक ये सेगमेंट मूव नहीं करेगा जब तक कोई एक पर्टिकुलर टीम जो है वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करती। ठीक है, अगर ये वाली टीम जो है वो ज़्यादा फोर्स अपनी तरफ अप्लाई कर दी तो ये स्ट्रिंग उधर की तरफ मूव कर जाए, दैट मीन्स के सारे सेगमेंट जो होंगे वो उधर की तरफ मूव कर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मैच ये जीत जाएंगे क्योंकि इस इधर साइड टेंशन जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे इसका एक डायग्राम दिखाया हुआ है, तो इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये टेंशन फोर्स इधर है, ये टेंशन फोर्स इधर है, दोनों टीम के थ्रू। ठीक है, तो ये भी बैलेंस्ड है, तो स्ट्रिंग कहीं भी मूव नहीं कर रहा और कोई सा भी टीम नहीं जीतेगा। लेकिन अगर ये वाली टीम थोड़ा सा टेंशन जो है इस वाले टेंशन से ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो फिर ये स्ट्रिंग उस तरफ मूव कर जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है। ठीक है, इसमें देखो ये कोई सा भी एक मतलब है, जैसे कि हमने इस बॉल को, और ये स्ट्रिंग है जो ग्रीन कलर का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी एक कह सकते हैं अलाइनमेंट है जिसपे हमने स्ट्रिंग और एक बॉल को हैंग करके रखा है। ठीक है, तो ये जो बॉल है इसका कुछ मास होगा और ड्यू टू मास इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ अप्लाई करेगा तो ये नीचे की तरफ पुल होगा। इसके पुल करने की वजह से ये जो स्ट्रिंग है जो कि वन एंड पे फिक्स है और वन एंड पे बॉल से अटैच्ड है, तो यहाँ पे फोर्स होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप विजिबल है तो रीड कर सकते हैं कि जहाँ पे ये स्ट्रिंग और ये बॉल कांटेक्ट में है, यानी कि ये वाला सरफेस। ठीक है, इस सरफेस पे जो स्ट्रिंग पे फोर्स जो है, मतलब बॉल पे फोर्स स्ट्रिंग अप्लाई कर रहा है, दैट इज F ऑन बॉल बाई रोप। ठीक है, और यहाँ बॉल पे स्ट्रिंग अप्लाई कर रहा है, ठीक है, F ऑन रोप बाई बॉल, मतलब F ऑन बॉल बाई रोप। ठीक है, तो मतलब किसी भी पॉइंट पे डबल फोर्स है तो ये मूव नहीं कर रहा है, ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। ठीक है, दिस होल सिस्टम इज एट रेस्ट बिकॉज हर पॉइंट पे जो फोर्स है वो टेंशन फोर्स है वो बैलेंस्ड हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम को आप देख सकते हैं। तो ये टेंशन का एग्जांपल है। बेसिकली हम रोप में ज़्यादा स्टडी करेंगे। ठीक है, रोप में, स्ट्रिंग में, स्प्रिंग में भी टेंशन फोर्स आता है, पर वहाँ पे स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग, रोप और इन सबको मिक्स करके अगर क्वेश्चन देता है तो उसमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो। ठीक है, तो ये सारे मिक्स क्वेश्चन जब आते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। आई होप कि टेंशन फोर्स क्लियर्स होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इस वाले डायग्राम में यहाँ पे मेंशन भी किया है। डायग्राम जस्ट अपीयर, ये डायग्राम में देखो ये वाला आदमी अपनी तरफ रोप को खींच रहा है और ये वाला मैन अपनी तरफ रोप को खींच रहा है। ठीक है, तो ये टेंशन मतलब इधर की तरफ टेंस कर रहा है और ये इधर की तरफ टेंस कर रहा है। टेंशन इज इक्वल एंड अपोजिट, सो द स्ट्रिंग इज नॉट मूविंग एनीवेयर। ठीक है, तो ये टेंशन इतना ही समझना है। किसी भी टॉट स्ट्रिंग या फिर रोप में या फिर रॉड ही ले लें। ठीक है, रॉड जो होता है उसमें हर एक सेगमेंट पे क्या होता है, टेंशन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट एक्ट कर रहा होता है।
ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण वो सेगमेंट कहीं मूव नहीं करता है, लेकिन अगर वही किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर टेंशन फोर्स ज़्यादा हो जाए तो वो सेगमेंट जो है वो मूव करेगा। हाँ ठीक है, और टेंशन के साथ कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता देती हूँ। देखो, नॉर्मली जैसे ये वाला डायग्राम में ही, ये वाला डायग्राम जिसको मैंने अभी डिस्कस करा था, है ना, तो इसमें क्या था, ये पूरा सिस्टम जो था, दिस होल सिस्टम वाज एट रेस्ट। ठीक है, ये बॉल भी रेस्ट पे था, ये स्ट्रिंग भी रेस्ट पे था। क्यों रेस्ट पे था? क्योंकि ये बॉल पे जो नीचे mg फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज बैलेंस्ड बाय द टेंशन फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग। ठीक है, इसके कारण क्या है, बैलेंस्ड हो जा रहा है। दैट मीन्स T इज इक्वल्स टू व्हाट, mg। ठीक है, T इज इक्वल्स टू mg के इक्वल है। ठीक है, दैट सीधा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। अ 10 kg monkey is climbing on a massless rope attached to a 15 kg mass and is passing over a smooth pulley. The mass is lying on the ground. In order to raise the mass from the ground, he must climb with. ठीक है, तो सी दिस इज अ सिंगल रोप। ये एक सिंगल रोप पे से 15 kg मास अटैच्ड है और यहाँ पे एक मंकी है जिस पे क्लाइम कर रहा है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि मिनिमम एक्सेलरेशन या फिर व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन जिससे कि ये मास जो है इससे लिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये मास को लिफ्ट होना, दैट मीन्स यहाँ पे जो टेंशन फोर्स है, जो भी टेंशन फोर्स है इसके वेट से ज़्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स टेंशन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन 150 न्यूटन। ठीक है, इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक मिनिमम 150 जो है वो मार्क करके ले जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मंकी को ऊपर मूव करना है तो मंकी ऊपर जो है वो टेंशन फोर्स की तरफ की वजह से मूव करेगा। ठीक है, टेंशन फोर्स यहाँ पे है, बट यहाँ पे जो अपने जो इसके जो लिम्स हैं उसके थ्रू ये स्ट्रिंग को पकड़े हुआ है, तो ये टेंशन फोर्स जो होता है वो इस पर ट्रांसफ़र होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, हालांकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पे एक्सप्लेन करना, पर सिंपली ये टेंशन फोर्स इस पर हम एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर ये मंकी जो है हमने ये बना दिया, दिस इज अ मंकी। ठीक है, तो इस मंकी पे ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लग रहा है और इधर नीचे मंकी का खुद का मास जो कि 10 kg है इंटू जी, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके उस पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि एफ नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नेट फोर्स जो है वो क्या आ जाएगा, T माइनस mg दैट इज 100 इज इक्वल्स टू इसका खुद का मास जो कितना है 10 इंटू एक्सेलरेशन जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे T जो है हम मिनिमम जो है 150 लेके चल रहे हैं, लेकिन आइडियली ये टेंशन फोर्स जो है वो 150 से क्या ना ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अगर हम 150 प्लेस करते हैं, 150 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 10a, सो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन जो है वो आपका आ जाएगा। दैट मीन्स ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो कब आया, जब हमने टेंशन फोर्स को एग्जैक्टली 150 के इक्वल ले लिया, लेकिन ये टेंशन फोर्स वास्तविक में अगर इसको लिफ्ट करना है तो ये 150 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली द एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा होगा। तो ये चारों अगर ऑप्शन देखें तो ये जो है वो राइट ऑप्शन होगा, दैट इज द मंकी शुड मूव विद द 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से इसको ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को देखो। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें 3 बॉडीज़ हैं। ठीक है, जिनका मास गिवन है, दे आर ऑल ऑफ 2 kg ईच। ठीक है, इसका ही मास कितना है, 2 kg है, ये भी 2 kg है और ये भी 2 kg है। ठीक है, दे आर हैंगिंग ऑन अ स्ट्रिंग ओवर अ फिक्स फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन द फिगर एंड वी हैव टू फाइंड द टेंशन बिटवीन दिस स्ट्रिंग कनेक्टिंग द B एंड C। ठीक है, B और C को कनेक्ट करते हुए फोर्स को चाहिए। ठीक है, तो अब देखो टोटल एक्सटर्नल फोर्स देखते हैं। ये भी 2 kg है, ठीक है, और ये भी कितना है, 2 kg का मास है। ठीक है, हमें इसका एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करना है।
तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हम इसको वन लिम्ब ऑफ स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं और इसको सेकंड लिम्ब ऑफ स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अगर इसको डायग्राम को अगर सिंप्लीफाई करें तो हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे क्या है 2 kg का मास है और इस वाले लिम्ब जो है उस पर क्या है 2 + 2 4 kg का मास जो है वो हैंग्ड है, सॉरी, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है, इसके हम वन लिम्ब को ये कंसिडर किया और ये वन लिम्ब कंसिडर किया, तो ये 2 kg है और ये क्या है 4 kg है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ठीक है, इस क्वेश्चन में 2 kg के 3 मासेस हैं A, B एंड C, ठीक है। इस तरह से ये पूरा सिस्टम हमें गिवन है, हमें इस B और C को कनेक्ट करने वाले रोप में टेंशन फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाया जिसमें इसके एक लिम्ब पे यहाँ 2 kg मास है और ये दूसरा इन पे क्या है 4 kg मास है। एक सेकेंड, ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है, तो मैंने 2 kg और 4 kg यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो विजिबल प्रॉपर नहीं है, बट ये 2 kg और ये 4 kg, कैसे 2 kg 4 kg हुआ, मैंने क्या किया कि इसको 2 kg और इन दोनों को ऐड करके 4 kg यहाँ लिख दिया, क्योंकि 2 लिम्ब को की तरह हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो नेट फोर्स अगर निकालें तो इस पे कितना है, नीचे 40 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा और इस पे जो है 20 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। तो इस सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो कितना है 40 - 20 एंड जो टोटल मास है वो कितना है 4 to 6 इंटू एक्सेलरेशन। तो ये 40 - 20 जो है वो 20 आ गया एंड दिस इज 6 इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है वो 10/3 जो है वो आ जाएगा, ठीक है, 10/3। अब हमें बी और सी के बीच में टेंशन जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बी और सी के बीच में टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम किसी भी बॉडी का डायग्राम, किसी नहीं, बी और सी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, देखो आई एम प्रिपेयरिंग इट हियर, ठीक है, ये सी है, ठीक है, जिसपे 20 न्यूटन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है क्योंकि इसका मास 2 है और ये रहा टेंशन T ऊपर और इसका एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड की तरफ है एंड दैट एक्सेलरेशन इज 10/3, ठीक है। 10/3 एक्सेलरेशन से इसको प्रॉपर लिखते हैं, रुको। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 10/3, उससे नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर अप्लाई करते हैं तो जस्ट सी कि क्या होगा, ठीक है, कि इसमें होगा 20 - T इज इक्वल्स टू मास जो कि 2 है इंटू एक्सेलरेशन विच इज 10/3, ठीक है, दिस इज 10/3। तो ये हो जाएगा 20 - T इज इक्वल्स टू 20/3। सॉल्व करेंगे 20/3 इज इक्वल्स टू T। तो यहाँ से ये टेंशन जो है दिस इज which is between B and C कनेक्टिंग रोप के बीच में, ठीक है, B and C कनेक्टिंग रोप के बीच में। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ये एक सरफेस है, दिस इज अ सरफेस और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इसका मास 4 kg है, ये इस सरफेस से अटैच्ड है और हमें बताना है कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इन दिस फोर्स, व्हाट विद द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो देखो ये 40 न्यूटन नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है और ये 20 न्यूटन। हाँ, तो ये क्वेश्चन आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ये एक सरफेस है और ये एक बॉडी है, ठीक, जो इससे अटैच्ड है। हमें नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है जो इस सरफेस और इस बॉडी के बीच में एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इधर देखो ये 30 न्यूटन का फोर्स जो है वो इसको सरफेस की तरफ पुश कर रहा है और ये 40 न्यूटन का फोर्स है जो इस पर डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है और प्लस ये 4 kg का इटसेल्फ मास है, तो इस पर 40 न्यूटन फोर्स जो है वो नीचे की तरफ खुद भी लगेगा। 40 न्यूटन का फोर्स जो है वो इस पर डाउनवर्ड भी लगेगा और ये 20 न्यूटन का इधर तरफ लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जो सरफेस कांटेक्ट में होता है उसके परपेंडिकुलर देखते हैं, इससे परपेंडिकुलरली जो है वो सिर्फ 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये जो है इसका आंसर 30 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया हो। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। इसमें एक मास 1 kg है जो कि स्ट्रिंग यहाँ AB और BC से मतलब ऐसे लटका हुआ है बिल्कुल इस तरीके से। हमसे कह रहा है कि अगर हम एक सडन इम्पल्स दें, इम्पल्स दैट मीन्स बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हम फोर्स अप्लाई करें, ठीक है। फोर्स का अप्लाई करना फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इज व्हाट इम्पल्स, ठीक है। तो बहुत ही, या इसको हम सिंपल लैंग्वेज में एक तरह कह सकते हैं कि झटका, ठीक है। अचानक से हमने इस BC सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसे झटका दिया तो क्या होगा
कि हमसे पूछ रहा है कि कौन सा रिंग मतलब स्ट्रिंग जो है BC या फिर AB कौन सा पहले टूटेगा। ठीक है, इसमें देखने वाली बात क्या है कि हर स्ट्रिंग की क्या होती है कि स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, जैसे कि एक पर्टिकुलर फोर्स तक ही ये झेल सकता है। जैसे अभी इसमें 1 kg मास जो है वो इसको होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, AB सेगमेंट में जो भी टेंशन होगा, ठीक है, टेंशन इन AB सेगमेंट दैट विल बी इक्वल्स टू 10 न्यूटन। पर ऐसा तो नहीं है कि हम इस AB सेगमेंट के स्ट्रिंग से 50 किलो का भी बॉडी हैंग कर सकते, नहीं, क्योंकि इस पर्टिकुलर AB सेगमेंट का एक मैक्सिमम वेट को होल्ड करने का होगा। लेट सपोज कि AB सेगमेंट मैक्सिमम जो है वो 5 kg, ठीक है, 5 kg का ऑब्जेक्ट जो है उसको हैंग कर सकता है। और अगर हमने जैसे ही 5 kg से ज़्यादा वाला मास यहाँ अप्लाई किया तो ये स्ट्रिंग क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो दिस AB एंड BC द सेम स्ट्रिंग, बस ये AB जो है वो ऊपर होल्ड कर रहा है और यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ और ये नीचे। तो अगर हम BC पे अगर हम ऐसे करके इम्पल्स देते हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो सबसे पहले BC स्ट्रिंग ही टूटेगा, क्योंकि इम्पल्स हम इसमें दे रहे हैं तो इम्पल्स पहले इसमें जा रहा है और इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो पहले मतलब क्योंकि सेम है, लेट्स सपोज 5 kg का, तो ये क्या होगा, पहले टूट जाएगा। ठीक है, पोर्शन BC ऑफ द स्ट्रिंग विल ब्रेक फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि जो भी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो हम इससे पहले यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।